Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss National Education Policy NEP 2020. It is part 1, MCQs with explanation. In this part, I will discuss 15 MCQs and also I will briefly explain principles, vision, and a good educational institution in NEP 2020. It is specially for UPSC Principal and Vice Principal Exam 2026. Now you know already advertisement released for Delhi Board Principal and Vice Principal Exam. And the most important one is you must know actually what type of questions coming in the UPSC Principal and Vice Principal Exam. That type of question already I have framed. So definitely session would be interesting one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel. You see my channel name, it is Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe, like and share my channel. And with patience, try to listen the video. Then directly you read and listen. It is different. If you listen the video, then instantly, expediently, you can acquire knowledge in regarding to the contents. So my friends, please subscribe my channel. If you see my video, please click on subscribe button. So you see, join my WhatsApp number. It is 832-778-2034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number 832-778-2034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss first. I will discuss 15 MCQs. Then I will explain principles, vision, and principles and vision of NEP 2020. And also in NEP 2020, it is clearly mentioned that actually what are the traits of a good educational institution. Achha, you see question number 1. Question number 1, it is given NEP 2020. NEP 2020 advocates for eliminating hard separations between arts and science, curricular and extracurricular activities, vocational and academic streams. So which of the following best articulates the core philosophical and systematic objective behind this directive? So also it is one of the principle. It is clearly mentioned that no hard separations between arts and sciences, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams. Okay, जो एक हमारा था मेन रीजन इज टू एलिमिनेट हार्मफुल hierarchies among and silos between different areas of learning. मेन रीजन इज जो हायरार्की था कि साइंस इज बेटर देन ह्यूमैनिटीज, कि कॉमर्स इज बेटर देन ह्यूमैनिटीज, तो वो हायरार्की नहीं रहेगा, कोई सेपरेशन नहीं रहेगा. आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड साइलोज बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग, इट मीन्स इट मीन्स पहले क्या था, थोड़ा सेपरेशन था. जो स्ट्रीम्स में थोड़ा सेपरेशन था, तो जो ह्यूमैनिटीज लेते थे थोड़ा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था. जो साइंस लेते थे तब उनका थोड़ा हम ओवरऑल देखेंगे कि जो साइंस स्ट्रीम्स लेते थे, पर्टिकुलरली पीसीएम सब्जेक्ट्स लेते थे, तो उनका थोड़ा जो इमेज था डिफरेंट था सोसाइटी में. मगर अभी एनईपी 2020 में देयर इज नो सेपरेशन. ओके, ऑल द स्ट्रीम्स आर इंटरकनेक्टेड. आप फिजिक्स रख सकते हो, अकाउंटेंसी रख सकते हो, हिस्ट्री रख सकते हो. So there is no hard separation. 4 options given to streamline the administrative burden of managing disparate academic departments. Second option, to eliminate artificial hierarchies among disciplines and ensure the unity and integrity of all knowledge domains. To reduce the total number of specialized subjects students must take before higher education. To mandate that science students spend equal instructional hours on arts and sports subjects. But most important one, option B is the correct answer. To eliminate artificial hierarchies among disciplines and ensure the unity and integrity of all knowledge domains. So अभी ऐसा कुछ हायरार्की नहीं रहेगा. हम नहीं बोलेंगे कि साइंस इज बेटर देन ह्यूमैनिटीज, कि साइंस इज बेटर देन कॉमर्स, ये नहीं रहेगा. सो इट मीन्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहेगा ऑफ ऑल नॉलेज डोमेन्स. माने मैं एक एग्जांपल देता हूँ
फिजिक्स के साथ आप आर्ट एजुकेशन रख सकते हो, फिजिक्स के साथ आप फिजिकल एजुकेशन रख सकते हो, फिजिक्स के साथ आप अकाउंटेंसी रख सकते हो, फिजिक्स के साथ आप हिस्ट्री रख सकते हो, ज्योग्राफी के साथ आप मैथमेटिक्स रख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी ऐसा सिस्टम है जो eliminate artificial hierarchies among disciplines and ensure the unity and integrity of all knowledge domains. Option B is the correct answer. चलो क्वेश्चन नंबर 2, why does the policy accord the highest priority to achieving foundational literacy and numeracy FLN for all students by grade 3? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन बाय ग्रेड 3. The child must know about the computation, must know about the calculation, and also he or she, the child must expert the child must know about the reading skills. Okay, so actually foundational literacy and numeracy actually strong the foundation of the child in regarding to the calculation, in regarding to the computation, and in regarding to the comprehension and regarding to the reading. Okay, so अभी ऑप्शंस देखेंगे. क्यों हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है एफएलएन को? बिकॉज ग्रेड 3 इज द स्टैंडर्ड एज फॉर नेशनल स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस to fulfill international baccalaureate alignment requirements by early primary school, because basic literacy and numeracy are non-negotiable prerequisites for all future school learning, without which education becomes largely inaccessible, to ensure students can transition into vocational training streams immediately after grade 3. तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो मैं अभी बताया जो एफएलएन एक्चुअली एक बेस क्रिएट करेगा, उसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो बाय स्टैंडर्ड 3 द चाइल्ड मस्ट नो अबाउट द लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, चाहे कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर चाइल्ड का नॉलेज होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इजीली वो असेस करता रहेगा. जैसे मैथमेटिक्स एंड जो इंग्लिश, जो लिटरेचर, जो लैंग्वेज रिलेटेड थिंग है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो इट मीन्स फ्यूचर लर्निंग के लिए. ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ ए लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क attempts to balance institutional freedom with public accountability under NEP 2020. How is this balance primarily achieved? What institutional freedom, light but tight regulatory framework, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता देता हूं क्लियरली. इसी जो प्रिंसिपल है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी मॉनेटरी रिसोर्सेस यूटिलाइज होता है एकेडमिक ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए स्कूल में, तो उसको प्रॉपरली ऑडिट किया जाएगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा. और उसमें जो मॉनेटरी रिसोर्सेज सपोज इन्वेस्ट किया गया, जिसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कि अदर सपोज एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक एआई को इंप्लीमेंट किया गया, कि एनी अदर सपोज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि इंटरेक्टिव सपोज बोर्ड्स must be installed in each and every classroom. Okay, the e-library अभी क्लियर शूट की वर्चुअल लैब, ये सब चीज आ चुका है. तो इसमें जो भी मॉनेटरी रिसोर्सेस इन्वेस्ट होगा उसका प्रॉपरली ऑडिट होगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा. और सिमिलरली उसमें जो एकेडमिक बेनिफिट मिलेगा, जो एकेडमिक बेनिफिट को भी प्रॉपरली ऑडिट किया जाएगा और पब्लिक को भी डिस्क्लोज किया जाएगा. सो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा और उसमें फ्रीडम भी है. जो स्कूल्स को फ्रीडम दे दिया जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करो, बच्चों को अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी दे दो. ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी इंटरफियर नहीं करेगा, मगर उसका ऑडिट प्रॉपर होगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा. एक स्टिमुलेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो स्कूल में, जिसमें बच्चों का क्यूरियोसिटी बढ़ेगा. ठीक है, इट मीन्स फॉर रीडिंग एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज. तो ये चीज है. इसमें 4 ऑप्शंस देखेंगे. बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ओवरसाइट ओवर डेली लेसन प्लानिंग कंबाइंड विद कंप्लीट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. ऑप्शन बी बाय ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी and encouraging innovation while ensuring integrity and transparency through public disclosure and audit based accountability.
by deregulating private educational institutions entirely while maintaining tight central control over public universities, by eliminating external audits and relying exclusively on internal faculty evaluations for governance. मगर इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. By getting institutional autonomy and encouraging innovation while ensuring integrity and transparency through public disclosure and audit based accountability. अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, in shifting the system away from a traditional coaching culture, NEP 2020 prioritizes which approach to student evaluation. देखिए, जो पहले जो कोचिंग कल्चर था वो रोट लर्निंग था. बच्चों को माने इट मीन्स कोचिंग सेंटर में बोल दिया जाता था कि आप ये सबको रिमेंबर करो. ठीक है. तो बच्चों का इतना कंटेंट के ऊपर इतना कमांडिंग नहीं था. मगर अभी जो एनईपी में क्लियरली मेंशन किया गया कि कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड होना चाहिए. कंसेप्चुअलाइज्ड लर्निंग के ऊपर एम्फसाइज किया गया. फॉर्मेटिव असेसमेंट, सो every after completion of each and every unit examination would be conducted. तो formative assessment जैसे semester type of exam will be conducted to assess and properly evaluate the students. वो जो समेटिव था, एक हाफ ईयरली एग्जाम एक एनुअल एग्जाम, वो जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उसको भाई डिस्कार्ड कर दो. अभी वो बेसिकली आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, यूनिट टेस्ट, ओके, एवरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू असेस द स्टूडेंट्स. तो ये इसमें 4 ऑप्शंस दिया है. रिप्लेसिंग ऑल इंटरनल स्कूल टेस्टिंग विद अ सिंगल हाई स्टेक्स समेटिव नेशनल एग्जाम एट द एंड ऑफ ग्रेड 12, transitioning to regular formative assessments for learning that evaluate conceptual understanding, critical thinking and application over rote memorization, eliminating grades and assessments entirely to remove academic pressure from school environments, implementing daily standardized multiple choice testing across all subjects to track memory retention. इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आप देखिए, ट्रांजिशनिंग टू रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर मैं बताया फॉर लर्निंग एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा कमांडिंग होना चाहिए. तो कंटेंट क्या है, कंटेंट का मीनिंग क्या है, कंटेंट को कैसे डिफरेंट वे में, द डिफरेंट एंगल में द चाइल्ड एक्चुअली मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कुछ लाइव एग्जांपल्स और क्रिटिकल थिंकिंग, द चाइल्ड इसके ऊपर सोचेगा पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर. डिफरेंट एग्जांपल्स, ही और सी मस्ट ब्रिंग डिफरेंट एग्जांपल्स और उसको एनालाइज करेगा, उसको सिंथेसिस करेगा. ठीक है, इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया. एंड एप्लीकेशन ओवर रोट मेमोराइजेशन, जो ट्रेडिशनल में था रोट मेमोराइजेशन, वो नहीं रहेगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020, हाउ शुड द एजुकेशनल इकोसिस्टम व्यू पब्लिक वर्सेस प्राइवेट पार्टिसिपेशन. देखिए, एक एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस. इसमें एम्फसाइज किया गया है प्रिंसिपल्स में कि access to quality education must be considered a basic right of every child. जो क्वालिटी एजुकेशन, एवरी चाइल्ड को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, ये बेसिक राइट है एवरी चाइल्ड का. ठीक है, तो उसमें भी क्लियरली दे दिया गया है कि एनकरेजमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रू फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. जो प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहेगा उनका एम बेनिफिट, उनका एम कुछ प्रॉफिट के ऊपर नहीं रहेगा. ठीक है, उनका एक वो दे दिया कि ट्रू फिलैंथ्रोपिक. फिलैंथ्रोपिक मींस क्या है, एक हम जो इंस्टीट्यूशंस जो है उसका हमारा मेन एम नहीं रहेगा कि हमको कुछ प्रॉफिट मिल जाए बच्चों से फीस लेके, वो नहीं रहेगा. मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे एकेडमिक ग्रोथ होगा, चिल्ड्रन को अच्छा एजुकेशन मिलेगा. तो इसके ऊपर फोकस किया गया है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में. अभी जैसे मिशन स्कूल्स चल रहा है, आप देखा होगा रामकृष्ण मिशन में, नहीं स्कूल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, बहुत स्कूल्स चला रहा है जो उनका एम प्रॉफिट नहीं है, उनका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो वही है, वो दिया है. वन साइड में गवर्नमेंट तो इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट चाह रहा है कैसे ऑल फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, मगर प्राइवेट साइड में
प्राइवेट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बात जब आ रहा है, मेन एम कमर्शियल बेनिफिट नहीं रहेगा, मेन एम रहेगा holistic development of the children. How can the children get quality education? Each and every children they must get quality education. ये भी प्राइवेट इट मीन्स लोगों का एम रहेगा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एम रहेगा यदि वो स्कूल इट मीन्स बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है। एजुकेशन इज ए कमर्शियल एंटरप्राइज, प्राइवेट एंटिटीज शुड ड्राइव मार्केट कंपटीशन while the state withdraws funding. Education is a public service and basic right. Substantial investment in the public system must be paired with genuine, philanthropic, non-commercial, private or community participation. Education should be fully privatized to ensure higher institutional infrastructure quality. Private participation must be banned entirely to preserve public sector monopoly over education. यहाँ पर भी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस एंड बेसिक राइट। Substantial investment in the public system must be paired with genuine, philanthropic, non-commercial, okay, private or community participation. उसको भी एक्सप्लेन किया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द विजन of NEP 2020 aims to transform India into an equitable and vibrant knowledge superpower. Which dual combination of student identity does it specifically seek to cultivate? जैसे एक विजन है एनईपी का, वो क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सुपर पावर। इक्विटेबल मींस कोई रिलेटेड टू द एजुकेशन, रिलेटेड टू द असेसिंग ऑफ एजुकेशन, उसमें कोई डिस्पैरिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। चाहे द चिल्ड्रन बिलोंग्स टू रिच फैमिली, चिल्ड्रन बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, चाहे नॉर्मल चाइल्ड कि डिसेबल चाइल्ड, ऑल वन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ये है इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सुपर पावर। तो इंडिया क्या है ग्लोबल वर्ल्ड में रिलेटेड टू द एजुकेशन, इंडिया वुड बी द सुपर पावर। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो एथोज है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, ओके, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हम जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, और हमारा जो एजुकेशन जो पैटर्न है, उसी को लेकर बच्चे हमारा इट मीन्स दे गेट रिकॉग्नाइजेशन नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड। दे कंट्रीब्यूट समथिंग नॉट ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा बच्चों का। तो ये एक विजन है। अच्छा, तो 4 ऑप्शंस गिवन देखेंगे। प्योरली लोकलाइज्ड कल्चरल आइडेंटिटी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, a deep-rooted pride and grounding in Indian ethos and constitutional values, alongside dispositions that embody global citizenship and sustainable living, an exclusively market-driven technical skill set, devoid of moral, civic, or constitutional grounding, a standardized global worldview that replaces regional languages and traditional knowledge systems. Again, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये डीप रूटेड प्राइड एंड ग्राउंडिंग इन इंडियन एथोज। देखिए इंडियन एथोज में क्या क्या आता है, जैसे नॉन वायलेंस है, पीस है, हार्मोनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कोऑपरेशन है, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ये सब इंडियन एथोज है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में फ्रीडम है, जस्टिस है, लिबर्टी है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। इसी को लेकर हम एक क्या है अच्छा सिटीजन बनेंगे। वी मस्ट इट मीन्स शो टू अदर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दैट वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग में बात आ जाता है मेनली एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल मस्ट अवेयर अबाउट द environment, how to protect the environment, how to preserve the environment. So same thing, different messages also it means providing to the global world that how to maintain sustainable living in the society and community. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी प्रिंसिपल। आप देखा होगा 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 2021 में उसका एडवर्टाइजमेंट आया था। तो आप देखिए उसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट्स दे रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। इसमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन, हमको करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। ठीक है।
तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एग्जाम में। आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया डायरेक्टली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी थ्रू हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ये करेक्ट है। द ओवरआर्चिंग macroeconomic goal of this transformation is to position India as a global manufacturing and industrial hub। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल हब ये नहीं है, ये गलत है। The policy explicitly uses the phrasing India, that is भारत, to anchor its institutional vision। ये भी करेक्ट है। आप एनईपी का विजन देखिए, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट वन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सेकेंड जो दिया है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन इज टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, नो ग्लोबल एक नॉलेज पावर। ओके, इसमें क्लियरली मेंशन है कि इंडिया वुड बी द ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। वो नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल हब में ग्लोबली वी कैन रिकॉग्नाइज आवर नेम, वो नहीं है। एनईपी क्लियरली मेंशन किया है कि आवर कंट्री, इट मींस आवर स्टूडेंट्स, ओके, they would be the global superpower, okay, across the globe। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में भी which of the following statements given is or are correct? First you read the statements properly। Three statements given according to the NEP 2020 vision statement, institutional curriculum and pedagogy must actively foster institutional curriculum and pedagogy must actively foster, अच्छा, a deep sense of respect towards fundamental rights while placing secondary emphasis on fundamental duties। अच्छा, deep sense of respect towards fundamental rights while placing secondary emphasis, ये रॉन्ग है। चाहे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, उसको हम डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट देंगे इक्वल सेंस में। वो यहां पर दिया है फंडामेंटल राइट्स को हम डीप सेंस में रेस्पेक्ट देंगे, मगर सेकेंडरी एम्फासिस ऑन नो, इक्वल एम्फासिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, इक्वल एम्फासिस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, इक्वल एम्फासिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इक्वल एम्फासिस ऑन इंडियन एथोज। ठीक है, ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, an adherence to constitutional values and bonding with one's country, ये करेक्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को मैं बताया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, सिकुलरिज्म, जस्टिस, फ्रीडम, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। ठीक है। एंड अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिजर्व द एनवायरमेंट, ओके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। एंड बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री, जो बॉन्डिंग विथ वंस कंट्री बेसिकली हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। वी फील प्राउड फॉर आवर कल्चर, वी फील प्राउड फॉर आवर हेरिटेज, वी फील प्राउड फॉर आवर लैंग्वेज, वी फील प्राउड फॉर आवर मॉन्यूमेंट्स, एंड इट मीन्स वी मस्ट रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस। ओके, तो ये है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ वंस रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, ये भी ठीक है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दे मस्ट नो देयर रोल्स। उनका रोल क्या है, उनका भूमिका क्या है, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ओके, उनका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हाउ टू डेवलप द नेशन, व्हाट दे कंट्रीब्यूट इन द नेशन, व्हाट दे कंट्रीब्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, तो वो नेशंस को कैसे अदर लेवल में लेकर जाएंगे, तो ये कॉन्शियस आवर, ईच एंड एवरी चाइल्ड दे मस्ट नो, ओके, व्हाट इज देयर रोल एंड व्हाट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट ए गुड नेशन, okay, to contribute something, suppose in regarding to the technology, in regarding to the science, in regarding to the engineering, in regarding to the mathematics across the globe। ठीक है, तो यहां पर जो है करेक्ट 2 और 3, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, हम डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, according to the NEP 2020 with reference to the vision of instilling pride in learners, consider the following statements। The policy seeks to instill a deep rooted pride in being Indian across thought, spirit, intellect and deeds, ये करेक्ट है। ये पॉलिसी बोल रहा है हम प्राउड फील करेंगे, deep rooted pride in being Indian across our thought, our spirit, our intellect, our deeds, okay, तो डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन अक्रॉस थॉट स्पिरिट। सो
जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, हमारा एक जो स्पिरिट है वो बहुत एक एनर्जेटिक स्पिरिट है। हम इंटेलेक्चुअल्स, हमारा जो थिंकिंग है क्रिटिकल थिंक, हम बिलीव करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इसको हम वी मस्ट, इट मीन्स बिलीव ऑन दीज थिंग्स एंड डीड्स। ओके, तो ये सब है। द पॉलिसी सिक्स टू इंस्टिल डीप रूटेड प्राइड इन बीइंग इंडियन अक्रॉस थॉट स्पिरिट, ये करेक्ट है। नेशनल प्राइड इज एनविजन्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल एंगेजमेंट टू प्रमोट डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस। नेशनल प्राइड इज एनविजन्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल। नो, ये गलत है, क्योंकि नेशनल प्राइड एक पार्ट है। नेशनल प्राइड फॉर आवर कल्चर, हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियन, ओके, एवरीथिंग वी फील प्राइड। एंड सेकेंड वन ऑल्सो, जो ग्लोबल एंगेजमेंट में, ग्लोबल वर्ल्ड में हमको प्रमोट करेंगे, हम एक सुपर पावर बनेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे नॉट ओनली इन द नेशन, अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, क्या किस एरिया में कंट्रीब्यूट करेंगे? साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। तो एवरी डिफरेंट एरियाज में हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, नॉट ओनली इन द नेशन बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब। तो यहां पर जो दिया है आज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल एंगेजमेंट टू प्रमोट डोमेस्टिक सेल्फ, ये गलत है। नेशनल प्राइड रहेगा, अदर साइड में टू प्रमोट डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा, थर्ड वन, द पॉलिसी प्रमोट्स एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज स्ट्रिक्टली सेक्युलर एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल इंडियन एथोस। तो इसमें ये भी गलत है। देखिए, जो इंडियन एथोस का बात में बताया, द पॉलिसी प्रमोट्स एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज स्ट्रिक्टली सेक्युलर, ये तो ठीक है। secular means actually we must respect to all religions. There is no disparity and there is no discrimination in regarding to the religion, in regarding to the caste, in regarding to the more, in regarding to the tradition. Okay, but यहाँ पर दे दिया disconnected from the historical Indian. No, Indian ethos, non-violence, peace, harmony, unity in diversity, ठीक है, respect different languages, ठीक है। तो ये सब इंडियन एथोस है, उसको कनेक्ट करेंगे, नॉट डिस्कनेक्ट। यहां पर दिया है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल इंडियन एथोस, नो। तो इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो एक एक स्टेटमेंट को आपको अच्छे से रीड करना है और ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। अगेन करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। Which of the following statements correctly capture the dual synthesis present in the NEP 2020 vision? Rootedness in Indian ethos is synthesized with global citizenship rather than treated as mutually exclusive. ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो इंडियन एथोस है, मैं अभी बताया था, जैसे हमारा जो नॉन वायलेंस है, पीस है, हार्मोनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, रेस्पेक्ट द लैंग्वेजेस है, रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस है, ये जो इंटरकनेक्टेड अमंग द डिफरेंट कास्ट पीपल, ये जो है इंडियन एथोस, उसको हम सिंथेसाइज करेंगे और एक अच्छा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, वी मस्ट बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अक्रॉस द ग्लोब इन ग्लोबल वर्ल्ड। और रादर देन इसको एक्सक्लूसिव, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव अलग नहीं रहेगा। वन साइड इंडियन एथोस हम बोले, वही एथोस को उसको हम यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे इंडिया में और आउटसाइड में। ठीक है, तो रादर देन क्रिएटेड एज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, वो अलग नहीं रहेगा। जो हम इंडियन एथोस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं हमारा नेशन में, सेम थिंग वी मस्ट इंप्लीमेंट इट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ इंडिया। सेकेंड वन, हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इज ट्रीटेड एज द प्राइमरी मैकेनिज्म टू अचीव ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर स्टेटस, ये भी करेक्ट है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर एथिकल, स्पिरिचुअल एंड वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट। अच्छा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज प्रायोरिटी, तो ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर हम जितना इंपॉर्टेंस देंगे, एथिकल, स्पिरिचुअल, वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट के ऊपर सेम इंपॉर्टेंस देंगे, कोई अलग नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? देयर इज नो डिस्पैरिटी अमंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, एथिकल डेवलपमेंट की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट। ऑल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली and all must be emphasized. Okay, तो यहां पर जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो क्वेश्चन नंबर 11, again consider the following statements regarding the key
रिगार्डिंग द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे, गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या ट्रेट है, क्या फीचर्स है। ए गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रायोरिटाइजेस प्रोवाइडिंग ए सेफ and stimulating environment alongside ensuring that every student feels welcomed and cared for, ये करेक्ट है। Infrastructure and physical learning resources are crucial, but their availability can be prioritized for select high performing students to maximize outcomes, but for their availability, ये गलत है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जो गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो चाइल्ड को वेलकम करेगा and taking care of the child, providing safety and security environment, providing all basic facilities, एक stimulating environment create करेगा। stimulating environment में क्या है ना, जो चाइल्ड का जो रीडिंग स्किल है और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है डिफरेंट एक्टिविटीज, और उसका जो जितना इंपॉर्टेंस वो दे रहा है करिकुलर में उतना इंपॉर्टेंस देगा वो को करिकुलर एक्टिविटीज, और एक कंपटीशन कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अमंग द चिल्ड्रन, ये सब गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन जो ट्रेट है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो ये है गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तब उसमें हम सोचेंगे कि हाँ ये फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, गुड टीचिंग रिसोर्सेस है, मॉनिटरी रिसोर्सेस एक्चुअली यूटिलाइज्ड ऑनेस्टली एंड ट्रांसपेरेंटली, एंड हम उसको भी पब्लिक को डिस्क्लोज कर रहे हैं, और जो भी न्यू इट मींस थिंग्स हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका एकेडमिक बेनिफिट है। हम करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर चाहे जितना एकेडमिक के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उतना आर्ट म्यूजिक स्पोर्ट्स उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारा चिल्ड्रन कॉम्पिटेटिव है, ठीक है। हमारा चिल्ड्रन नॉट ओनली दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द स्कूल, दे आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्सटर्नल कॉम्पिटिशंस, ठीक है। सेकेंड चीज है जो क्यों मैं गलत बताया सेकंड स्टेटमेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल लर्निंग रिसोर्सेज तो क्रूशियल है। जो लर्निंग रिसोर्सेज बच्चों को चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो तो क्रूशियल है, मगर वो बताया है कि इसका अवेलेबिलिटी ओनली सिलेक्ट हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी एनईपी एम्फासाइज किया है कि इक्विटेबल, एक वर्ड एम्फासाइज किया है कि द चाइल्ड बिलोंग्स टू रिच फैमिली, द चाइल्ड बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, द चाइल्ड बिलोंग्स टू मॉडरेट फैमिली, सबको इक्वल एजुकेशनल एक्सेस मिलेगा, सबको इक्वली क्वालिटी एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलेगा, इक्वली उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे नॉर्मल चाइल्ड या डिसेबल चाइल्ड, इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, द डिसेबल चाइल्ड, हैंडिकैप्ड चाइल्ड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल चाइल्ड, दे कैन सिट इन द सेम क्लास, इन द सेम मैनर दे मस्ट लर्न, there is no disparity and discrimination among the normal child and disabled child कि child belongs to rich family and child belongs to poor family, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। टू स्टेटमेंट्स गिवन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल infrastructure and system wide education planning। अच्छा, two statements, appropriate physical infrastructure and learning resources must be made available to all students universally, correct है। institutional autonomy requires that each stage of education operates in isolation to maintain distinct standards। देखिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी इंपॉर्टेंट है, गोटे इंस्टीट्यूशन का फ्रीडम रहेगा, ओके। वो क्या क्या इनिशिएटिव्स क्या क्या प्लान करेगा, एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड की होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज का बहुत कम इंटरफियरेंस रहेगा, ओके। द मेजॉरिटी टाइम्स गवर्नमेंट अथॉरिटी दे कैंट इंटरवेन, इट इज द इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। मगर उसमें क्या है, जो भी मॉनिटरी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा और उसका प्रॉपरली ऑडिट होगा, जो भी एकेडमिक बेनिफिट बच्चों को मिलेगा उसका भी प्रॉपरली ऑडिट होगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। और इसमें ऑटोनॉमी एम्पावरमेंट के ऊपर एम्फासाइज किया गया है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसका प्लानिंग, उसका जो स्ट्रैटेजी है, कैसे उसका जो एकेडमिक ग्रोथ बच्चों का होगा, कि करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, कि वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों का कैसे ग्रोथ होगा, उसके लिए वो क्या किस तरीके का टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और किस तरीके का फैसिलिटीज बच्चों को प्रोवाइड करेगा। मिनिमम फैसिलिटीज तो देना है, मगर उसके अलावा और क्या फैसिलिटीज देगा,
तो उसमें बच्चों को एक क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, डिफरेंट एरियाज एक्चुअली द चाइल्ड मस्ट बी गेटिंग प्रॉपर फैसिलिटीज। मगर इसमें क्या है, चाहे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर टू हायर एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर टू आप ले जाइए कि सपोज मिडिल स्कूल ले जाइए, सेकेंडरी ले जाइए, प्रिपेरेटरी ले जाइए, तो उसमें एक प्रॉपर कनेक्शन रहेगा, इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो धीरे धीरे वो क्या है ना, कोई सपोज जैसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर में ये फैसिलिटीज दे दिए मगर उसका डिस्कनेक्ट हो गया प्रिपेरेटरी स्टेज में, फिर प्रिपेरेटरी स्टेज में जो भी फैसिलिटीज दिए वो डिस्कनेक्ट हो गया मिडिल स्कूल में, वैसा नहीं, करिकुलम ऐसे डेवलप होगा, ऐसा बच्चों को फैसिलिटीज दिया जाएगा, वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड होगा, तो चाइल्ड ग्रो करते रहेंगे एवरी फील्ड, ठीक है। तो यहां पे भी ऑप्शन 1 इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन 2 बस, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एडवोकेट्स ए लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क दैट बैलेंसेस ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट विथ ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म एडवोकेट्स ए लाइट बट टाइट फ्रेमवर्क दैट बैलेंसेस ऑटोनॉमी एंड एम्पावरमेंट विद ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, ये करेक्ट है। हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। एडुकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एज ए सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट रिक्वायरिंग यूनिफॉर्म पॉलिसी एग्जीक्यूशन अक्रॉस ऑल स्टेट्स। यूनियन लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो हमारा जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। जो कॉन्करेंट लिस्ट में उसमें बोथ यूनियन एंड स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी फ्रेमवर्क रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रहेगा रिलेटेड टू द एजुकेशन, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। यहां पर यूनियन लिस्ट में से गलत है। Synergy in curriculum is envisaged across all levels, establishing continuity from early childhood care and education up through higher education. ये correct है। So 1 and 3rd statement is correct one. Option B is the correct statement. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। अच्छा, 3 स्टेटमेंट्स गिवन। Access to quality education is treated as a basic right of every child, defining education fundamentally as a commercial service driven by market efficiency. ये जो स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बेसिक राइट रहेगा, क्वालिटी एजुकेशन एक बेसिस, क्वालिटी एजुकेशन मस्ट असेस बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन ईच एंड एवरी चाइल्ड को मिलेगा, मगर यहाँ पर जो उसमें जो सेंटेंस कनेक्ट किया, एडुकेशन फंडामेंटली एज ए कमर्शियल सर्विस ड्राइवन बाय मार्केट एफिशिएंसी, नो, इट इज गलत है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट, द पॉलिसी एम्फसाइजेस द एक्सटेंसिव यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली टू एलिमिनेट लैंग्वेज बैरियर्स एंड इंक्रीज एक्सेस फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग लर्निंग ट्रैजेक्टोरीज आर की प्रिंसिपल्स डिजाइन्ड to foster holistic development across academic and non academic domains, ये करेक्ट है। मल्टी डिसिप्लिनरिटी, आप देखिए ना, आप अभी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज कि एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सेम एकेडमिक्स के ऊपर जितना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इसमें उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अभी पीएमसी स्कूल्स में देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, योगा है, सेल्फ डिफेंस है, उसके ऊपर कोचेस है, स्पोर्ट्स कोचेस है, ठीक है। और बाकी आपको रोबोटिक्स, जो अटल टिंकरिंग लैब पे जो रोबोटिक्स देखिए, और उसके लिए स्पेसिफिक फंड आल्सो गिवन बाय द गवर्नमेंट टू परचेज सम गुड बुक्स फॉर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो बहुत कुछ चीज के ऊपर, अभी टीचर्स के लिए भी रिसोर्सेस है, बहुत कुछ चीज के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, द चाइल्ड वो उसका जो डिजायर है, उसका जो वांट है, उसके हिसाब से वो चूज करेगा सब्जेक्ट्स, ठीक है। पहले जो था साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ये सब नहीं है, देयर इज नो हार्ड सेपरेशन। अभी चाइल्ड उसका फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो चूज करेगा कि मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूं और इसी सब्जेक्ट को लेकर मेरा एम्बिशन और मेरा जो गोल है मैं कैसे फिक्स, वो ऑलरेडी चाइल्ड उसको क्या है, उसी का जो विश के हिसाब से, उसका जो डिजायर के हिसाब से वो अभी सब्जेक्ट को चूज कर रहा है। तो वही है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और उसका प्लानिंग कर रहा है।
तो इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स 2 and 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का, तो उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल्स एंड विजन्स को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टीचर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। टीचर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंटीग्रेशन देखेंगे स्टेटमेंट्स, यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। टीचर्स एंड फैकल्टीज आर पोजिशनड एज द सेंट्रल ड्राइवर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस रिक्वायरिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड पॉजिटिव सर्विस कंडीशंस। ठीक है, देखिए टीचर्स जो फैकल्टीज है, चाहे उनका रिक्रूटमेंट, उनका कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनका जो सर्विस फैसिलिटीज, ये सबके ऊपर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, तब हमको एक अच्छा टीचिंग रिसोर्स मिलेगा जो बच्चों को अच्छे से गाइड करेंगे। ओके, जो बच्चे एक्चुअली द चिल्ड्रन दे मस्ट ग्रूम अंडर सम गुड टीचिंग फैकल्टी and those teachers actually they got recruitment, okay, through very transparently and through honesty. They got actually recruitment. Okay, they are getting proper facilities, they are getting proper service facilities, continuously they are getting training, how to manage the classroom, how to motivate the students, okay, how to fix the career of the students, okay, how to maintain equity in the classroom, what type of technology should be adopted in the classroom so that the children getting quality education, each and every children must access quality education। ठीक है, तो important, ठीक है, करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च इज कैरेक्टराइज्ड एज ए फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट फॉर अचीविंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है, मगर इनकरेक्ट पूछा है, तो 1 only 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरा 15 क्वेश्चंस था। तो किस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ईच एंड एवरी सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है और समझना है। ठीक है, चलो अभी मैं बताया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड विजन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आप थोड़ा देख लीजिए, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द एनईपी 2020, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वेरी शॉर्ट मैनर एक्चुअली आई वांट टू डिस्कस। फर्स्ट वन, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल। इट मीन्स जो ईच एंड एवरी चाइल्ड का जो पोटेंशियलिटी है उसको जज करना बहुत जरूरी है। वो किस फील्ड में एक्सपर्ट है, सपोज एक चाइल्ड आर्ट में एक्सपर्ट है कि म्यूजिक में एक्सपर्ट है, मगर हम उसको बोल रहे हैं नहीं तुझे साइंस सब्जेक्ट लेना है, मगर वो पेंटिंग में अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है, वो डांस में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। जिस फील्ड में अच्छा है उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाना है, तो उस तरीके का जो उसका डिजायर के हिसाब से उस तरीके का सब्जेक्ट उसको देना है। तो यदि पेंटिंग अच्छा है तो उसको पेंटिंग सब्जेक्ट के दे दो ना, यदि स्पोर्ट्स अच्छा है तो उसको फिजिकल एजुकेशन दे दो। ठीक है, तो अभी तो नो हार्ड सेपरेशन, ओके, इट मीन्स अमंग साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बोथ टीचर्स एंड पेरेंट्स दे शुड आइडेंटिफाई एंड नर्चर द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टीचर्स एंड पेरेंट्स का मेन रोल है कि वो आइडेंटिफाई करेंगे किस एरिया में एक्चुअली द चाइल्ड एक्चुअली इंप्रूविंग, और उसका डिजायर क्या है, उसका किस एरिया में वो बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, तो उसी एरिया में एक्चुअली द चाइल्ड को ग्रो करना है, और उस केस में टीचर्स एंड पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट जरूरी है। तो यहां पर फर्स्ट वन, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। उसको रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसी में उसको ग्रो करना है, जो उसका जो यूनिक एबिलिटी है, जो यूनिक कैपेबिलिटी है, ओके, जिस एरिया में। ठीक है, अच्छा, सेकेंड वन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एवरी चाइल्ड यू नो बाय ग्रेड 3, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बाय ग्रेड 3 ईच एंड एवरी चाइल्ड दे मस्ट हैव बेसिक नॉलेज in regarding to the reading, writing and arithmetic skills। okay, रीडिंग में, राइटिंग में, arithmetic skills के ऊपर उसका बेसिक नॉलेज रहेगा बाय ग्रेड 3। ओके, तब ये फाउंडेशन हम अच्छा बेस को अच्छा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फ्यूचर लर्निंग बहुत ओपन हो जाएगा। ओके, वो फ्यूचर जो लर्निंग में बहुत प्रॉस्पर करेगा। तो सेकेंड प्रिंसिपल है। थर्ड वन, फ्लेक्सिबिलिटी का बात आता है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी में द चाइल्ड को चूज करने दो, उसका जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से
वो सब्जेक्ट्स को चूज करेगा। स्टूडेंट्स शुड हैव द फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट्स। अभी वो फिजिक्स के साथ पेंटिंग रखना चाहता है, मैथमेटिक्स के साथ पेंटिंग रखना चाहता है, ठीक है, कि आईटी के साथ वो फिजिकल एजुकेशन रखना चाहता है, तो उसका हिसाब से वो सब्जेक्ट चूज करेगा और वो उसका लर्निंग पाथ को क्रिएट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड कैरियर गोल्स। हम उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसको कंपेल नहीं करेंगे, नहीं उसको तुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है, नहीं पेंटिंग अच्छा नहीं है, म्यूजिक अच्छा नहीं है, फिजिकल एजुकेशन अच्छा नहीं है, ये नहीं बोलेंगे। तो चाइल्ड को क्या है, उसका लर्निंग पाथ वो खुद क्रिएट करेगा बाय चूजिंग द सब्जेक्ट्स। तो चाइल्ड को हम फ्रीडम देंगे, ठीक है, ये थर्ड प्रिंसिपल है। फोर्थ वन, ये तो मैं बोल चुका हूं, नो रिजिड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अभी फिजिक्स के साथ पेंटिंग, फिजिक्स मैथमेटिक्स पेंटिंग आईटी रख सकते हैं, कि फिजिक्स हिस्ट्री पेंटिंग मैथमेटिक्स, तो नो हार्ड सेपरेशन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट आप देखिए, देयर शुड बी नो स्ट्रिक्ट डिवीजन बिटवीन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, वोकेशनल एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल स्ट्रीम्स आर इक्वली वैल्यूएबल। जितना एकेडमिक के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे उतना वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस देंगे। कौशल विकास अभी स्कूल लेवल में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टैंडर्ड 6 में, 7th में, 8th में, ठीक है, तो किस किस स्किल एरिया में चाइल्ड डेवलप करेगा। ये इवन 9-10 में देखिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मल्टी स्किल असिस्टेंट, ये सब आ गया, ठीक है। तो रिजिड सेपरेशन नहीं रहेगा कि साइंस इज बेटर देन ह्यूमैनिटीज, की साइंस इज बेटर देन कॉमर्स, ये सब नहीं रहेगा, ये जो हायरार्की था ये नहीं रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, मल्टी डिसिप्लिनरिटी एंड ए होलिस्टिक एजुकेशन। एजुकेशन शुड इंटीग्रेट साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड स्पोर्ट्स टू डेवलप वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स। यही तो है होलिस्टिक एजुकेशन। अभी जो चाइल्ड आप देखिए, अभी साइंस सब्जेक्ट के जो ये था, जैसे हम रखेंगे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पेंटिंग है, हिस्ट्री है, चाइल्ड रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कि फिजिक्स है, अकाउंटेंसी है, पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकता है। तो अभी साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब इंटीग्रेट होगा, ओके, दे आर इंटीग्रेट अमंग ईच अदर। तो इसी में क्या है, इंडिविजुअल्स का वेल राउंड डेवलपमेंट होगा, ये होलिस्टिक एजुकेशन। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पहले जो रोट लर्निंग था अभी नहीं रहेगा, अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्लासरूम में टीचर्स कुछ लाइव एग्जाम्पल देंगे, टीचर्स स्टूडेंट्स को बाहर लेकर जाएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, जो कोई भी कॉन्सेप्ट को वो इंटीग्रेट करेंगे, ओके, नेचर का कोई ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसमें क्या है, द चाइल्ड एक्चुअली द चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विथ क्लैरिटी, विथ प्रॉपर रिलेवेंस, ठीक है। तो रोट लर्निंग चला गया, अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा लर्निंग को एम्फसाइज किया जाएगा विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है। स्टूडेंट्स शुड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनोवेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अभी इस एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। कोई भी कंटेंट को जब टीचर डिस्कस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके ऊपर क्या है, द चाइल्ड उसको उसका जो थॉट प्रोवोकिंग बोलते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा डिफरेंट एंगल्स में। लॉजिकल रीजनिंग वो उसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा, डिफरेंट एंगल में सम एग्जांपल्स लेगा, ठीक है। इनोवेटिव आइडियाज रहेगा, उसका एक डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा। तो इस तरीके से अभी देखिए आप जो पीएमसी स्कूल्स है उसमें जो अटल टिंकरिंग लैब है, वो छोटा छोटा बच्चे एटीएल को जाएंगे, वहां पर वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नॉलेज एक्वायर करेंगे, तो उसके ऊपर सोचेंगे कि कैसे एक न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे वो, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। अच्छा, एथिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे एथिक्स के ऊपर जैसे एम्पैथी है, रेस्पेक्ट है, ऑनेस्टी है, क्लीनलीनेस है, ये सब एथिक्स के ऊपर आ जाता है। देखिए एम्पैथी, रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, ये सब आ जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, साइंटिफिक टेम्पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब, रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है। Okay, the child must be gratitude towards others. The child, it means each and every time must have empathy towards others, respect to others, integrity must be there, honesty must be there,
the child must believe on cleanliness, preserve environment, okay, prevent environmental crisis, okay, और constitutional values में democracy, equality, freedom, fraternity, secularism, ओके, रेस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो ये सब चीज रहेगा, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म, जैसे अभी सीबीएसई ने 3 लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज रहेगा और 2 इंडियन लैंग्वेज रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर मल्टीलिंगुअलिज्म, द चाइल्ड एक्चुअली मस्ट एक्सपर्ट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो दैट द यदि डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर हमारा कमांडिंग रहेगा, तब हम जाकर एक एजुकेशन में हम ग्लोबल सुपर पावर बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक्चुअली ऑलरेडी ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश हो गया, आपका एक रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा, और एक थर्ड लैंग्वेज आप ले जाइए, जैसे ये हिंदी हो गया, और ये आपका लैंग्वेज तमिल हो सकता है, उड़िया हो सकता है, मणिपुरी हो सकता है, आसामी हो सकता है, ठीक है। तो लर्निंग थ्रू मल्टीपल लैंग्वेजेस इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स में कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ये सब, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोऑपरेशन, लीडरशिप, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, ये सब लाइफ स्किल्स द स्कूल शुड डेवलप, ओके। द चाइल्ड मस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली, हाउ टू कम्युनिकेट विथ पीपल इन द सोसाइटी, ओके। टीम वर्क, कोई स्पोर्ट्स, कोई गेम, कोई एक्टिविटी, कोई इट मींस डिबेट, इसमें टीम वर्क रहेगा। कोऑपरेशन, ईच एंड एवरी टाइम द चाइल्ड मस्ट कोऑपरेट टू ईच अदर। लीडर, चाइल्ड का लीडरशिप क्वालिटी रहेगा, जो भी, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो, इसमें चाइल्ड का लीडरशिप क्वालिटी रहेगा। अडेप्टेबिलिटी, कोई भी सराउंडिंग के साथ वो अडाप्ट करेगा, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी। एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स एक्चुअली वो एक्चुअली बहुत एक चाइल्ड का जो थिंकिंग रहेगा बहुत एनकरेजिंग रहेगा, ऑलवेज वो एनर्जेटिक रहेगा, ओके। और वो जो डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर वो स्टिक रहेगा, ठीक है, उसका डिसीजन इमीडिएटली कोई चेंज नहीं कर सकता, और उसका जो कमिटमेंट है वो उसका कमिटमेंट के हिसाब से वो एक्चुअली उसका कैरियर को ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट, अभी जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं समेटिव, उसका इंपॉर्टेंस नहीं, अभी सेमिस्टर सिस्टम आ गया। एवरी यूनिट, कोई सब्जेक्ट का कोई यूनिट खत्म होने के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। सो मेनी एग्जाम्स एक्चुअली द चाइल्ड फेस ड्यूरिंग ए ईयर, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो यूनिट टेस्ट के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाएगा, तो ईयर एंड एग्जामिनेशन के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। तो जो यूनिट टेस्ट होगा कि फॉर्मेटिव टेस्ट होगा, तो पीरियोडिकली द चाइल्ड को एक्चुअली असेस किया जाएगा, एवेल्युएट किया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी का बात आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी शुड एनहांस टीचिंग, ओके, रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स। देखिए अभी जो जितना टेक्नोलॉजी आया है, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है, क्योंकि थ्रू टेक्नोलॉजी आप इजीली, सपोज आप एक ओडिया स्टूडेंट है, मगर आप तमिल, तेलुगु, असमी, बंगाली, ये लैंग्वेज को अच्छे से एक्वायर कर सकते हो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ओके। बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुका है दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए, तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, और उनका जो भी मेमोरी, जो भी ब्रेन लेवल रहेगा, वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ समान रहेगा, और उनका कोई जो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो असेस करेंगे, कोई अलग नहीं रहेगा। तो उस तरीके का टेक्नोलॉजी उनके लिए डेवलप किया गया है। वो टेक्नोलॉजी को यूज करके एक्चुअली वो जो नॉर्मल चाइल्ड जैसे एजुकेशन को असेस कर रहा है वो भी कर पाएगा। एंड सपोर्ट एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी का बात बोल रहा हूं, स्मार्ट क्लासरूम, आप सुन लीजिए। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, चाहे दीक्षा हो, स्वयं हो, मूक्स जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, कि एजुकेशनल ऐप्स है, बाईजूज है, खान एकेडमी है, और वर्चुअल लैब्स में ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट होगा, ऑनलाइन लैब एक्सपेरिमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वो चाइल्ड का जो एकेडमिक ग्रोथ को असेस करेगा। और जो वर्चुअल रियलिटी है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर एआर है, वो 3D मॉडल्स के ऊपर एम्फसाइज दे रहा है। और डिजिटल असेसमेंट है, ऑनलाइन क्विजेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ठीक है। और एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो ई बुक्स है, ई लाइब्रेरी है, एजुकेशनल वीडियोस है, गैमिफिकेशन जो है, जैसे एजुकेशनल जो क्विज है,
कि सेमिनार है, वो काहुट जो प्लेटफॉर्म है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुका है। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर डिजिटल लिटरेसी के ऊपर एक सिलेबस है यूपीएससी प्रिंसिपल में, उसके ऊपर मैं बहुत वेरी क्विकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेस्ट। देखिए जो लोकल कंटेस्ट है, जैसे अभी दे रहा है सीबीएसई कि जो लोअर क्लासेस में जो 20% सिलेबस रहेगा लैंग्वेज में, वो लोकल कंटेस्ट के ऊपर रहेगा। 20% जो जैसे आपका लैंग्वेज है, जैसे लैंग्वेज में आपका जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उड़िया है कि आसामी है कि मणिपुरी है कि बंगाली है कि तमिल है कि तेलुगु है, उसमें 20% एक्चुअली लोकल कंटेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा। चाहे लोकल मॉन्यूमेंट्स, लोकल हेरिटेज, लोकल कल्चर, लोकल पेंटिंग, लोकल डांस, उसके ऊपर, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन बेस करेगा उसी के ऊपर। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया शुड बी बेस्ड ऑन based on our tradition, our culture, our heritage, our monuments। ठीक है। तो respecting diversity, so many languages are there, so many caste, so many languages, so many religion, so many mores। अब देखिए तो इसमें क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ईच एंड एवरी टाइम डाइवर्स है, लैंग्वेज में डाइवर्स है, ओके, फूडिंग में डाइवर्स है, ड्रेस पैटर्न में डाइवर्स है। ठीक है। तो बाकी आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट है, मगर एक यूनिटी रहेगा। ठीक है। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटी इन रिगार्डिंग टू द डिफरेंट लैंग्वेजेस, कास्ट, रिलीजियन। ठीक है। इक्विटी इंक्लूजन में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी। जैसे रिच फैमिली से चाइल्ड बिलोंग करता है, पुअर फैमिली से चाइल्ड बिलोंग करता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सबको इक्वल एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलेगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इंक्लूजन, अभी नॉर्मल चाइल्ड, डिसेबल चाइल्ड सेपरेट नहीं होंगे। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन नॉर्मल चाइल्ड एंड डिसेबल चाइल्ड, बोथ सिटिंग टुगेदर एंड असेस क्वालिटी लर्निंग एंड असेस क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है। करिकुलम कंटिन्यूटी, ऐसे करिकुलम बनाएंगे जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर टू हायर एजुकेशन, वो उसका कंटिन्यूटी रहेगा। जैसे जो सिलेबस स्टैंडर्ड 3-4 रहेगा, उसका कनेक्शन रहेगा 5-6-7। जो 5-6-7 में जो मिडिल स्कूल में जो सिलेबस रहेगा, वो कनेक्ट करेगा हायर एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी लेवल में। तो ऐसे जो करिकुलम रहेगा इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर, एक कंटिन्यूटी फ्लो करेगा। इसीलिए तो एफएलएम को एम्फसाइज किया गया है कि बाय स्टैंडर्ड 3 द चाइल्ड मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑन रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन। सो वो बेस क्रिएट करेगा। तो इसलिए वो क्या है, प्रिपेरेटरी स्टेज को जब जाएगा, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी, उसमें क्या है, जो करिकुलम ऐसे डिजाइन किया जाएगा जो इंटरकनेक्टेड अमंग ईच अदर। तो उसमें चाइल्ड ग्रो करता जाएगा, द चाइल्ड इनकलकेट नॉलेज, ओके, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट वन, टीचर्स को सेंटर में रखा जाएगा। क्या है, चाहे रिक्रूटमेंट हो, बहुत रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट रहेगा, और टीचर्स को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग दिया जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो आप जानते हो कि एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई, एवरी ईयर 50 आवर्स ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग करना ही करना है टीचर्स को, उसका प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, और उसको सर्विस फैसिलिटीज दिया जाएगा। ठीक है। तो टीचिंग फैकल्टी अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली चाइल्ड का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड ग्रो करेगा, चाइल्ड एक सिनर्जेटिकली की एनर्जेटिकली काम करेगा। ठीक है। तो टीचर्स आर द सेंटर। लाइट बट टाइट रेगुलेशन में डिस्कस कर चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें किया गया है जो भी मॉनेटरी रिसोर्सेस को ऑटोनॉमी रहेगा। देखिए यहां पर दिया गया है कि फर्स्ट वन में ऑटोनॉमी, तो स्कूल उसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, उसका हाउ टू यूज फिजिकल रिसोर्सेस, हाउ टू यूटिलाइज मॉनेटरी रिसोर्सेस ऑप्टिमली, कि व्हाट टाइप ऑफ एकेडमिक बेनिफिट्स एक्चुअली रिसीव बाय द चाइल्ड, what type of it means infrastructure should be developed for the co-curricular activities। तो ये ऑटोनॉमी रहेगा, मगर उसमें क्या होगा, जो भी मॉनेटरी रिसोर्सेस यूटिलाइज होगा उसका ऑडिट होगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा। और उसमें जैसे एआई को इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें जो भी मटेरियल्स वो परचेज किया गया, ठीक है, तो उसको प्रॉपर्ली ऑडिट किया जाएगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करने से बच्चों को जो एकेडमिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, बच्चों को जो वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा, उसको भी पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा।
और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। अकाउंटेबिलिटी मेनली रिलेटेड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेस, प्रॉपरली ऑडिट होगा, पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। चाहे आपका जो जो भी डेवलपमेंट होगा स्कूल लेवल में, तो वहां पर पीटीसी जो है पेरेंट्स टीचर्स के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो कभी भी पेरेंट्स पब्लिक कंप्लेन नहीं करेगा कि ये चीज ये स्कूल डेवलप कर रहा है और उसमें क्या पैसा खर्च हो रहा है, क्या बच्चों को एकेडमिक बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज बेनिफिट मिल रहा है, स्कूल उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में बहुत कुछ चीज आता है, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पब्लिक इन टाइम। इट मीन्स जो भी मॉनेटरी यूटिलाइजेशन होगा उसको पब्लिक को डिस्क्लोज करना है, उसको शो करना है, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, तो ये सब रहेगा, रिसोर्स एफिशिएंसी थ्रू ऑडिट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो भी होगा प्रॉपरली, चाहे एकेडमिक बेनिफिट का ऑडिट होगा, चाहे मॉनेटरी रिसोर्सेस जो यूटिलाइज हो रहा है उसका ऑडिट होगा और पब्लिक को डिस्क्लोज किया जाएगा। रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन, हाई क्वालिटी रिसर्च शुड सपोर्ट इनोवेशन, नॉलेज क्रिएशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। हाई क्वालिटी रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, मोर इनोवेटिव थिंग्स, मोर न्यू थिंग्स वुड बी डिस्कवर्ड एंड कैन बी यूज्ड इन द क्लासरूम्स सो दैट द स्टूडेंट्स गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। और नेशनल डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली जब चाइल्ड जब एक्चुअली चाइल्ड को फैसिलिटीज मिलेगा, चाइल्ड अच्छा क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस करेगा, ऑटोमेटिकली अल्टीमेट रिजल्ट इज द नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस रिव्यू, आपका जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, उसको प्रॉपरली एवेलुएट किया जाएगा, ओके, और उसके ऊपर फीडबैक लिया जाएगा एक्सपर्ट से। अच्छा, रूटेडनेस इन इंडियन कल्चर, जैसे जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, नॉलेज सिस्टम है, तो द चाइल्ड एक्चुअली शुड फील प्राउड, ऑलवेज द चाइल्ड फील प्राउड फॉर द कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशंस, नॉलेज सिस्टम्स, ओके। तो इसी वैल्यूज को लेकर हम एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे ग्लोबली। पब्लिक सर्विस एजुकेशन एज ए पब्लिक सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन एक्चुअली एक राइट है, एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, ईच एंड एवरी चाइल्ड मस्ट गेट क्वालिटी एजुकेशन, ओके। तो ये भी इंश्योर किया जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में ये दिया गया है कि जब प्राइवेट कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगा, उनका प्राइमरी एम प्रॉफिट नहीं रहेगा, वो उनका नॉन कमर्शियल मोटिव में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। इसलिए तो दे दिया गया फिलांथ्रोपिक प्राइवेट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो उसमें कोई मॉनेटरी एम नहीं रहेगा। अभी देखिए बहुत कुछ मिशन स्कूल्स है, चाहे रामकृष्ण मिशन है और सो मेनी चैरिटेबल स्कूल्स है, उनका मेन एम प्रॉफिट नहीं है, उनका मेन एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हाउ कैन द चाइल्ड गेट क्वालिटी एजुकेशन, तो वही रहेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका पॉलिसीज। थोड़ा विजन के ऊपर देखेंगे, विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 का विजन क्या है, कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। एजुकेशन रूटेड इन इंडियन एथोज, में बताया था जो इंडियन एथोज में बहुत कुछ चीज आ जाता है, जैसे आपका नॉन वायलेंस है, पीस है, हार्मोनी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कोऑपरेशन है, each and everyone respect to different cultures, each and everyone respect to different languages, okay, तो respect the environment, okay, तो ये सब चीज इंडियन एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन रूटेड होगा वो इंडियन एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन इंडियन रिच कल्चर, ट्रेडिशंस, नॉलेज सिस्टम while embracing modern scientific thinking। आप देखिए आईकेएस को जूनियर पीएमसी स्कूल में 6, 7, 8 स्टूडेंट्स के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम को इट मींस गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, उसमें एक एक्सपर्ट को एक्चुअली हायर किया जाएगा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर बताएगा। आईकेएस में क्या है, हमारा जो ट्रेडिशंस क्या था और हमारा कल्चर्स क्या है, ठीक है, हमारा चाहे हमारा डांस, हमारा पेंटिंग, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा मॉन्यूमेंट्स, हमारा हेरिटेज साइट्स, हमारा डिफरेंट टूरिस्ट स्पॉट, उसमें क्या कल्चर छुपा है और उसको उसके साथ हम मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। अच्छा, एक नॉलेज सोसाइटी, इंडिया को एक ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए नॉलेज सोसाइटी नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब। यही इंडियन जो एथोज है, हम ओनली इंडिया में तो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं मगर उसको हम लेकर जाएंगे आउटसाइड,
ऑफ इंडिया, जहां पर हम अदर्स को शो करेंगे कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो पीस, नॉन वायलेंस, हार्मोनी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजियंस, रेस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस, इसको बिलीव करता है। तो इसमें क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम क्रिएट करेंगे, रेस्पेक्ट, एक हम ग्लोबल, अच्छा ग्लोबल सिटीजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये भी एक अच्छा विजन है। चाहे चाइल्ड बिलोंग्स टू पुअर फैमिली है कि रिच फैमिली, मॉडरेट फैमिली, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सब क्वालिटी एजुकेशन असेस करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड हैंडीकैप्ड चाइल्ड। ओके, तो कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नहीं दिया जाएगा। जब इट मीन्स बच्चों को एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को नहीं देखा जाएगा कि चाइल्ड का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, चाहे फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में क्या क्या आता है, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सब आता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सबको हम डीप सेंस में रेस्पेक्ट करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको हम डीप सेंस में हम रेस्पेक्ट देंगे। ठीक है, लव एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द नेशन, हमारा एक पैट्रियोटिज्म फीलिंग रहेगा, डेवलप पैट्रियोटिज्म, जो नेशनल इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री, पैट्रियोटिक फीलिंग रहेगा। ठीक है, हमारा जस्ट वी लव आवर नेशन, ओके, and each and every time we take our nation to a different level, we pride, it means pride for our nation, we feel proud for our scientists, feel proud for our technologists, we must feel proud for our academician, we must feel proud for our sports persons. और national integration में क्या है, we respect all cultures, we respect all languages. तो हमारे लिए कोई ये नहीं है कि सपोज मेरे लिए मेरा जो रीजनल लैंग्वेज जितना इंपॉर्टेंट है, मेरा अदर लैंग्वेजेस जो है, अदर स्टेट का लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेशनल इंटीग्रेशन, ओके, ईच एंड एवरी टाइम वी कैन एक्सचेंज आवर कल्चर, वी कैन एक्सचेंज आवर डांस पैटर्न, वी कैन एक्सचेंज आवर फूड हैबिट्स, वी कैन एक्सचेंज आवर ड्रेस पैटर्न। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, कैसे वी कैन टेक आवर नेशन टू ए डिफरेंट लेवल। अवेयरनेस ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट वो सोचेगा कि मेरा रोल क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स माय नेशन, ओके, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये अवेयरनेस रहेगा चाइल्ड के माइंड में, उस तरीका का करिकुलम को डिजाइन अभी गवर्नमेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्राइड इन बीइंग इंडियन, ऑलवेज हम प्राउड फील करेंगे हमारा हेरिटेज को लेकर, कल्चर, लैंग्वेज, अचीवमेंट्स, ट्रेडिशन, ओके, थॉट्स, वैल्यूज एंड एक्शंस, हम ऑलवेज फील प्राउड एज इंडियन। ये हमारा ये कल्चर देखो, हमारा लैंग्वेज देखो, हमारा अचीवमेंट्स देखो, हमारा ट्रेडिशंस देखो, हम उसको लेकर हम प्राइड फील करेंगे, ओके, अक्रॉस द ग्लोब। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज एजुकेशन शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोवोकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, एथिक्स, लाइफ स्किल्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सबके ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। ये एक विजन है। ठीक है, विजन ऑफ द एनईपी 2020। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंटल क्राइसिस को प्रिवेंट करेंगे, ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, जो हमारा राइट्स है उसको रेस्पेक्ट करेंगे, और ह्यूमन राइट्स का बात जब आता है हम स्ट्रिक्टली लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ठीक है, वी कैन नॉट टेक एनीथिंग इन आवर हैंड, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, वी मस्ट मूव एंड वी मस्ट एक्चुअली स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, हम ऐसा चीज अभी क्रिएट करेंगे जो हमारा फ्यूचर जनरेशन थ्रेट में नहीं रहेगा। ओके, रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, वी अडॉप्ट एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन एक्चुअली दे विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ मेनासिंग सिचुएशन। लैंड, जो अभी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है कि हमारा जैसे मॉडर्न फार्मिंग जो था उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करेंगे, एवरीवेयर डस्टबिन इंस्टॉल करेंगे,
और हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे, और जहां पर भी गार्बेज है उसको कलेक्ट करके प्रॉपरली हम आइसोलेट प्लेस में डंपिंग करेंगे, ठीक है, और हम वाटर पोल्यूशन नहीं होने देंगे, एयर पोल्यूशन नहीं होने देंगे। ये सब चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट शो करता है, सो दैट वेरी पीसफुली इट मीन्स वेरी हैप्पीली वी कैन लिव इन आवर कंट्री। ओके, इट मीन्स वी मस्ट लिव हैप्पीली इन पॉल्यूट फ्री एनवायरमेंट। ग्लोबल सिटीजन, इंडिया एक सुपर पावर बनेगा एजुकेशन में। ओके, इंडियन वैल्यूज लेकर, इंडियन वैल्यूज को हम चारों तरफ डिसेमिनेट करेंगे। लर्नर्स शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स हु कंट्रीब्यूट टू पीस, कोऑपरेशन एंड द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये हो गया एक गुड। लास्ट पार्ट है, एनईपी 2020 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि किसको एक गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम बोलेंगे, क्या क्या फीचर्स रहेगा एक गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें देखिए, एक वेलकमिंग एनवायरनमेंट, एक वेलकम, इसमें मेन चीज है, एक बच्चों को हम एवरी टाइम वेलकम करेंगे, उनको केयर प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट देंगे। जो छोटा छोटा बच्चे, अभी बाल बाटिका एज 3 एज है, ओनली चाइल्ड को 3 एज है, वो भी बाल बाटिका में जाएगा, ठीक है कि नहीं, 3 इयर्स बाल बाटिका आंगनबाड़ी। तो उसमें चाइल्ड को हम वेलकम करेंगे, उसको एक केयरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसको एवरी टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सेफ, एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो each and every school they must provide safe learning environment to the child. Stimulating learning environment, stimulating में क्या है, each and every child must have curiosity to learn, okay, involve in different projects, एक competitive spirit, involve in different competitions without aiming of any prize, okay, involve in symposium, seminar, debate, quizzes, ओके, एम ये नहीं रहेगा कि मुझे प्राइज नहीं मिलेगा तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, बच्चों का एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे लर्न के लिए, ठीक है। और जो टीचिंग फैकल्टीज है वो बच्चों को अच्छे से ग्रूमिंग करेंगे, एक एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस में अभी देखिए स्मार्ट क्लासेस है, और वर्चुअल लैब है, ई लाइब्रेरी है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं उसको हम कुछ लाइव एग्जांपल्स देंगे बच्चों को। ये नहीं कि ओनली क्लासरूम के अंदर ओनली हम बैठाएंगे और उनको कुछ एक्सपेरिमेंट, आप आउटसाइड को ले जाइए, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट कीजिए। अभी जैसे हम स्पोर्ट्स के साथ, कंटेंट को स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग के साथ, कुछ म्यूजिक डांस के साथ हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, एक फन मैनर एक्चुअली द चाइल्ड एक्चुअली लर्न्स द कंटेंट्स। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, एडिक्वेट लर्निंग रिसोर्सेस है, लर्निंग रिसोर्सेस रिलेटेड टू द, सपोज आपको मेन है लर्निंग रिसोर्सेस में टेक्नोलॉजी। अभी बहुत प्रकार का टेक्नोलॉजी, स्मार्ट, एवरी क्लासरूम में इंटरेक्टिव बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, और ऑनलाइन इट मीन्स क्लासेस, ठीक है। जैसे जो दीक्षा पोर्टल, डिफरेंट टाइप ऑफ ई प्लेटफॉर्म्स आर देयर, दीक्षा, स्वयं, निष्ठा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। ई लाइब्रेरी में बच्चे जाकर क्या करेंगे, सो मेनी, इट मीन्स इन्फिनिट बुक्स एक्चुअली, मैगजीन्स दे आर गेटिंग, ओके, थ्रू ब्राउजिंग ऑफ द इट मीन्स ई लाइब्रेरी एक्चुअली कैटलॉग, ठीक है। इक्वल एक्सेस फॉर ऑल, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसमें हम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं देखेंगे चाइल्ड का, सबको इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा। इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये जो पॉइंट्स है ये एक गुड इंस्टीट्यूशन को शो करता है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, और इसका अदर पार्ट्स को आप वेट कीजिए कंटेंट के साथ, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन and I frame some good MCQs so that type of MCQs you can get in UPSC principal and vice principal exam. So please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get quality videos in subsequent time. आज इतना ही, thank you and namaskar to all of you.